Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Shatin Sawati is here with a new lecture from Biosciences with Shatin Sawati. This lecture is about the dicot versus monocot, and this is the part of the plants sciences. This lecture is from the series of plant sciences. और इससे पहले हम के lecture start करें तो I have an humble request to all of you who did not subscribe my channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon and share the videos with other. Like the videos and promote the education and educational channel in Pakistan. So now I'm starting my lecture, which is about dicot versus monocot. I will give you the concept of the dicotyledon and monocotyledon. This dicotyledon and monocotyledon is actually the characteristics of the plant. Which plant? Angiosperms. This monocotyledon, dicotyledon condition do not exist in gymnosperms. It just exists in the एंजियोस्पर्म्स. और एंजियोस्पर्म्स को बहुत डिटेल के साथ मैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके लाइफ साइकिल को और सारा. तो यहाँ से हम अपना नाउ आई एम स्टार्टिंग माई लेक्चर. You can see here on the screen 2 seeds. This is the one which is monocotyledon, monocot seed, and this seed is the corn seed, maize seed. ठीक है. And you can see here the other seed with 1 and 2 cotyledon, and this is bean seed, and this is the what dicotyledon, because you can see here the two lids and here is just one lid. So mono concept is for 1 and di for the 2. So dicotyledons are those plants which have 2 cotyledon, and monocot which have just 1 cotyledon. Okay. Now I'm moving towards the exact definition of the cotyledon. What are basically the cotyledon is? So cotyledon, which is the characteristics of the angiosperm, is defined as the zygote grows into the embryo. You people have the concept of zygote, how it produced by the fertilization of the sperm and egg. Now this zygote develop into the embryo, and this zygote embryo is, you know, that present in the form of the seed in case of the plants. So embryo is enclosed in the seed. So the first leaves of the young sporophyte, you can see this is the sporophyte plant, and the first leaves of the young sporophyte plant develop. You can see here after germination, first sowing of the seed. After sowing, what will happen? The seedling is produced, young plant, seedling. It after germination, the plant germinate and young seedling is produced. This plant, this seed now grow into the sporophyte plant, and the first leaves are called the cotyledons, because यहाँ पे आपको जो cotyledon नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह स्टोर होते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, वो यूज़ हो जाते हैं ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ जर्मिनेशन. यानी कि वो रूट और शूट की डेवलपमेंट में तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ड्यूरिंग जर्मिनेशन यूज़ हो रहे होते हैं. जब वो यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, और फूड किसके अंदर स्टोर होते हैं? इन कॉटिलेडन्स के अंदर. तो वो सारा का सारा फूड जर्मिनेशन में यूज़ हो जाता है, और ये जो कॉटिलेडन्स हैं ये बिल्कुल हॉलो हो जाते हैं, बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं. एम्प्टी होने के बाद, हॉलो होने के बाद वो क्या बना देते हैं? फर्स्ट लीफ बना देते हैं. स्पोरोफाइट के फर्स्ट ग्रीन लीव्स बना जाते हैं. तो इनको क्या कहा जाता है? कॉटिलेडन्स. तो कॉटिलेडन्स के लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है सीड लीव्स. इज इट क्लियर नाउ? Now I'm moving towards the monocots. Monocots have 1
कॉटिलिडन, और इनमें हमने कॉर्न वेरा के, लिली वेरा और बहुत सारे मोनोकॉट्स और डाइकोट्स को आप अपने घर में देखें, अपने किचन में देखें कि आप कौन सी जो है पल्सेस खा रहे हैं वो मोनोकॉट्स में हैं, कौन से डाइकोट्स हैं, कौन सी फूड आप खा रहे हो, कॉर्न खा रहे हो तो वो क्या है, राइस खा रहे हो तो वो क्या है, राइस भी मोनोकॉट है। तो इस तरह से जो चीज़ें आप बीन्स खा रहे हो, आप ग्रेम सीड्स यानी चने वगैरह खा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, सारे डाइकोट्स। उनमें आपने देखा होगा कि 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। और अब आपको पता चल गया कि कॉटिलिडन को आप डिफाइन कैसे करोगे, और इनको सीड लीव्स भी कहते हैं। और ये यंग स्पोरोफाइट के जो फर्स्ट लीव डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, कॉटिलिडन से। उसके अंदर जितना भी फूड होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन यूज़ हो जाता है, ठीक है, ग्रोथ में। तो वो जो हॉलो कॉटिलिडन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड्स में, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ. Now moving towards the next slide, you can see here the comparison between the two seeds. This is the monocotyledon, this is the dicotyledon. ठीक है, और यहाँ पे आप एक कॉटिलेडन देख रहे हो, 2 देख रहे हो, ऊपर आप मोनोकॉट्स की जो स्पोरोफाइट है उन दोनों में भी डिफरेंसेस देख रहे हो. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट जो इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉटिलेडन, एज आई हैव डिस्कस, इन मोनोकॉट 1 कॉटिलेडन एंड इन डाइकॉट 2 कॉटिलेडन. अब देखो यहाँ पे 1 कॉटिलेडन है तो उससे 1 लीव अराइज कर रहा है. यहाँ पे 2 कॉटिलेडन्स हैं तो जर्मिनेशन के बाद 2 सीड्स 2 लीव्स अराइज कर रहे हैं, क्योंकि ये डाइकॉट का है और डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन 2 ग्रीन लीव्स होते हैं, ठीक है. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें मोनोकॉट हो तो इसमें से 1. दिस विल मेक द सेंस, है ना. अब हम जाते हैं आगे. अभी आप इसकी लीफ की वेनेशन देखें. वेनेशंस मीन वेन्स का जो पैटर्न है यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो. अब आपको मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं. अब डाइकॉट में आप लीफ की वेनेशन देख रहे हो, वो नेटवर्क की तरह है. किसकी तरह है वो? बिल्कुल नेटवर्क की तरह सारे वेन्स जो हैं वो लीफ की सरफेस के ऊपर फैले हुए हैं, ठीक है. लेकिन आप डाइकॉट में देख रहे हो कि ये जो वेनेशन है ये क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, ये लाइंस पैरेलल हैं. लेकिन इसके अंदर आपने क्या देखा है कि वो नेटवर्क की तरह उनका पैटर्न क्या है, स्कैटर्ड होने का. यू कैन सी हियर द पैटर्न ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द veins on the surface of the leaves. Actually these veins conduct water and the food, contain xylem and phloem now. So you can see here the difference. डाइकॉट में किस तरह की है, नेटवर्क लाइक है, और मोनोकॉट में किस तरह से वेनेशन होती है, आप देख रहे हो पैरेलल वेनेशन होती है. इज इट क्लियर नाउ? सबसे पहला डिफरेंस हमने मोनोकॉट और डाइकॉट का 1 कॉटिलेडन मोनोकॉटिलेडन देखा और डाइकॉटिलेडन. फिर उसके बाद हम उसकी लीव्स को देख रहे हैं. तो लीव्स में भी हमें उनकी वेनेशन में सबसे पहले फ़र्क, अगर आप खुद अपने घर में देखना है कि जिन पत्तों के ऊपर, जैसे अगर आप मकई को देखें, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ग्रासेस को देखें, इसके अलावा आप यू कैन सी वीट, ठीक है. तो वीट, मेज, ऑल दीज प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन. तो वो क्या है, मोनोकॉट्स हैं. और आपने अपने घर में चेक करना है कि जो डाइकॉट्स हैं आपके घर में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उनको चेक करना है उनका डिफरेंस कि कौन से जो है इनमें वेनेशन जो है वो पैटर्न नेटवर्क की तरह है और किन में पैरेलल है. इज इट क्लियर नाउ? ओके. लाइव किस्म का आप प्रैक्टिकल घर में किया करें. बायोलॉजी तो हर तरफ है, तो आप लोग घर में देखा करें इन चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है. आप खा क्या रहे हो, आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो इर्द आपके प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन सबको देखा करें. तो यहाँ पे फिर अभी आप सिर्फ प्लांट्स को देखेंगे क्योंकि हम मोनोकॉट और डाइकॉट का जिक्र कर रहे हैं. चलें जी, हम आगे ज़रा मूव करते हैं. तो मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट्स भी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. अब अगर आप मोनोकॉट की रूट्स को देखोगे, जस्ट सपोज़ you take out the plant of maize plant, या आप you can also take out wheat plant, ठीक है, from the soil. तो you can see here the roots are just like hairs. Such roots are known as fibrous roots. But in case of the dicot, you can see the tap roots
टैप रूट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये यहाँ से टैपर होती हैं, यहाँ से नैरो होती हैं और ऊपर से ब्रॉड होती हैं, जिसमें बहुत सारे आप लोग देख सकते हो। जैसे आप सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको रेडिश की दूंगी, तो रेडिश में आप देखो रेडिश कैसा है, टर्निप कैसा है, तो उनकी वो सब हम क्या कहते हैं, किस में आते हैं, डायकॉट्स में आते हैं। तो उनकी रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट, टैपरिंग की वजह से, ऊपर से ब्रॉड और एट द टिप दे आर नैरो, tapering. So they are known as tap roots, and these hair like roots are known as fibrous root. तो ये this is the characteristics of monocots. अब आपको अगर प्रैक्टिकल के अंदर दो प्लांट्स दिए जाते हैं, उनके रूट्स दे दी जाती हैं, तो आपने देखना है कि अगर वो बिल्कुल आपको हेयर्स की तरह, फाइबर्स की तरह नज़र आ रहे होंगे, तो आपको होगी दिस इज़ मोनोकॉट। जैसे मैंने आपको लीव्स का बताया कि अगर आपको दो लीव्स दे दिए जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो आप उनको आसानी से यू कैन आइडेंटिफाई वन लीव विद पैरेलल एंड द अदर लीव विद द नेटवर्क वेनेशन. You can easily tell this is the monocot, this is. Similarly, in the case of root, you can see here, you can easily identify the roots of the monocot and dicots. Now, I think so it clears your concept of monocot, and it will clear inshallah. ओके जी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फ्लावर्स. फ्लावर्स के पार्ट्स का अगर हम करते हैं तो मोनोकॉट्स एग्जिस्ट इन ग्रुप्स ऑफ द 3. मोनोकॉट्स एग्जिस्ट इन द ग्रुप ऑफ 3, बट द डायकॉट एग्जिस्ट इन ग्रुप्स ऑफ 4 या समटाइम वो 5 के ग्रुप्स में होते हैं. ठीक है, लेकिन मोनोकॉट्स ऑलवेज इन ग्रुप ऑफ 3. ओके, ऑड नंबर और इवन नंबर को याद रखना है. ओके, नाउ moving towards the vascular bundle position. Vascular bundle, you people are familiar with the vascular bundles, xylem and phloem. Xylem and phloem arrangement. This vascular bundle position means xylem and phloem arrangement. Now you can see here, if you have to observe the slide under the microscope, जैसे just suppose ये slide आपको दे दी जाती है, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे आइडेंटिफाई करना है भाई विच वन इज़ द मोनोकॉट एंड डायकॉट, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. मोनोकॉट के केस में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं. वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड हुए होते हैं. किधर स्कैटर्ड होते हैं, तमाम जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको वेस्कुलर बंडल की पोजीशन, अगर हम इसके स्टेम को डाइसेक्ट करते हैं, तो स्टेम की डाइसेक्टिंग जो हम स्लाइड बनाते हैं, तो स्लाइड्स के अंदर हमें जो इस किस्म की स्कैटर्ड पोजीशन वेस्कुलर बंडल की नज़र आएगी, तो उसको आप क्या कहोगे, ये मोनोकॉट. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई. एंड इफ़ यू हैव टू ऑब्जर्व दैट स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, यू कैन सी हेयर द वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन दिस xylem and phloem bundle arranged in a circle. ये अब सर्कल के अंदर हैं. They are not scattered like this. You can see here the vascular bundles are scattered, but in this case you can see the vascular bundles arranged in a circle. Here scattered, here arranged in circle. So this is the clear difference between the monocots and dicots. I hope so the concept is clear now. Now, moving towards what? Stem type. You can easily identify the monocots and dicots. In case of the monocots, like in maize, in wheat, many more, rice, you can see the plants are herbaceous type. Herbs की तरह होते हैं, green होते हैं, herbaceous होते हैं. लेकिन dicots में हमें, जैसे अब पुदीना है, mint, this is also dicot, and mint is green and herbaceous, and many more like coriander, धनिया वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, डाइकॉट्स हैं लेकिन हर्बेशियस हैं. और आप इनमें यू कैन सी द लार्ज प्लांट्स, मैनी लाइक एंजियोस्पर्म्स, लार्ज प्लांट्स विद ग्रीन एंड वुडी स्पोरोफाइट. तो उनमें इन दिस केस यू कैन सी द हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट बोथ. डाइकॉट्स में हर्बेशियस भी होते हैं, वुडी भी होते हैं. नाउ you can say that in case of the mint, in case of the coriander, they are what? They are herbaceous.
और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं भी यहीं थोड़ा बहुत जो नाम ले रही हूँ, आपने और भी सर्च करने हैं। प्लांट्स को, डाइकॉट्स को और मोनोकॉट्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखना है कि मोनोकॉट्स क्या होते हैं, हर्बेशियन, उनका हर्बेशियस स्टेम होते हैं, जबकि डाइकॉट्स का हर्बेशियस भी होता है कुछ केसेस में, कुछ प्लांट्स में जो छोटे प्लांट्स होते हैं, और जो लार्ज होते हैं स्पोरोफाइट, उनमें क्या होती है, वुडी होती है। इज इट क्लियर नाउ? Now moving towards the summary. This is the overall summary. You can see here, this is the monocot, this is the leaf of monocot, these are the vascular bundles scattered, parallel venation, and leaves exist in groups of the 3. But in case of the dicots, flowers in groups of 4 or sometimes 5, और इनके dicotyledon 2 cotyledons हैं। लीव्स के अंदर विनेशन जो है वो कैसी नज़र आ रही है आपको? दिस इज़ नेटवर्क लाइक, और इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर अरेंज इन सर्कुलर रिंग। इज इट क्लियर नाउ? नाउ मूविंग टवर्ड्स द ओवरऑल कंपेरिजन between the monocots and dicots. In case of dicotyledon, in case of monocotyledon and dicot. Cotyledon को देखते हैं, फर्स्ट cotyledon, 1 cotyledon and 2. Next leaf venation, this is parallel, this is broad network like. Roots, monocots fibrous roots, dicots tap roots. ठीक है। फिर नंबर ऑफ फ्लावर हमने कहा 3 और यहाँ पे 4 या 5। फिर इसमें वेस्कुलर बंडल्स का कहा स्कैटर्ड थे, अभी आप देख चुकी हो, और अरेंज इन सर्कल। ठीक है। और वुडी और हर्बेशियस, ये मोनोकॉट्स ऑल आर हर्बेशियस, बट द डाइकॉट्स समटाइम हर्बेशियस समटाइम। आपने कहा कुछ प्लांट्स हैं, देयर आर सम प्लांट्स विच आर हर्बेशियस एंड देयर आर मैनी प्लांट्स विच आर वुडी। Now I hope so the concept is clear about the monocots and dicots. So you identify the plants around you, ठीक है, और प्रैक्टिकली इनको करें, खुद देखें कि विच आर मोनोकॉट्स विच आर डाइकॉट्स, उनको कलेक्ट करें अपने पास। ठीक है। और उनको डिफ्रेंशिएट करें और उनके बारे में लिखें। So if you have any question about this lecture, kindly ask me. I will try my best to clear your concepts and answer your questions. So thank you very much. I will come back with a new lecture on plant sciences. Okay ji, thank you and Allah Hafiz.